किसी ने क्या खूब लिखा है, तू अपनी अंदर खूबियाँ ढूँढ, तू अपनी अंदर खूबियाँ ढूँढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। अगर सपना देखना है ऊँचा देख, नीचे दिखाने के लिए लोग हैं ना। अगर प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अंदर जुनून का चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। बस तू कुछ करके देखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस 5 फैंटास्टिक क्वेश्चंस फ्रॉम जेईई एडवांस 2020 पेपर 2। आपका ड्यूटी बनता है ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छा से वॉच करो, समझने का कोशिश करो, लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, एक clear practice till you perfect, and perfect practice makes you perfect. The more you practice, the more you get. The more you practice and study, the better you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. Some cracking JEE Advanced exams with a great confidence. Number one, if you truly want to crack JEE Advanced, start by understanding concepts deeply, not just memorizing formula. Number two, every great rank begins with clarity in fundamentals. Number three, study each topic with patience, focus, and curiosity. Number four, discipline is the bridge between your dream and your result. Number five, consistency every single day is more powerful than occasional hard work. Number six, practice problems that challenge your thinking and logic. Number seven, follow smart learning strategies, not just long study hours. Number eight, learn from mistake because every error teaches a stronger concept. Number nine, surround yourself with quality guidance, good resources, and positive motivation. Number 10, remember it. Remember with deep understanding, discipline, consistency, and a smart education. Cracking JEE Advanced becomes not just a dream but a planned achievement. सो आज का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days during the first 15 days of every month, and it is mandatory that no two visits take place on consecutive days. No two visit place on consecutive days. Then the number of all possible ways in which such visits to the factory can be made by the engineer during 1 to 15 June 2021 is. So my dear friends, clear. Here what you'll do here, so that means number of solutions where 0 is included, a clear, इसे आपको अप्लाई करना है. So that means what you'll get ना, so number of solutions के लिए क्या फॉर्मूला था, n minus r plus 1 c of r. n is 15 है, r is 4 है, so that is 12c4, and you can easily solve this types of problem. Now what you'll do here, so you will write so the solutions of these questions, so that is what, so this is selection of 4 days out of 15 days such that no two of them are consecutive. So therefore, so this is equal to is what, 15 minus 4 and c of 4. So that is equal to what you'll write. So this is 16. So this is 12c4. So this is equal to what you'll write. So this is 12 factorial by 4 factorial into 8 factorial. So this is what you'll get, 12 into 11 into 10 into 9 into 8, 8 cancel, and 4 factorial means 24. So this is 2. So this is what, 5. So what you'll get, so this is 55 into 9. So that is what, so this is equal to 495. So my dear friends, ये आपको समझना है. क्लियर, ये परमुटेशन कम्बिनेशन चैप्टर से है, इसे आपको समझना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है, क्लियर, ये जब आपको समझ आ जाएगा, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. नाउ आज का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो. इन ए होटल 4 rooms are available. 6 persons are to be accommodated in these 4 rooms in such way that each of these room contains at least 1 person and at most 2 persons.
then the number of all possible ways in which this can be done. So that means क्या हर एक रूम में तो एक एक करके होगा, मैक्सिमम क्लियर 2 रूम में आप 2 डाल सकते हो, क्योंकि ना 4 रूम्स पर्सन 6 है, ठीक है, यही आपको समझना है. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का एक क्लियर क्वेश्चन है. नाउ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस क्या होगा, यहीं पे क्या है देखो, 4 persons and 6 rooms, sorry 6 persons and 4 room. So that means क्या clear. So that means you can write so like this, this is 2 2 1, clear. So this is 1. This ways you can arrange it. So the number of possible ways it can be done, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, पहले तो क्या लिखोगे 6 फैक्टोरियल, ठीक है. 6 पर्सन्स का अरेंजमेंट कैसे कैसे हो रहा है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है. अभी क्या है देखो, सो दिस इज 4 रूम में, ठीक. सो दिस इज व्हाट 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये आपको लिखना है. सो दैट इज व्हाट 6 फैक्टोरियल मीन्स कितना होगा 720 इंटू 4 फैक्टोरियल, सो दिस इज 24 एंड 2 2 2 2, सो this is 16 है. So this is 2, this is 3, and so this is what, so this is, so what you'll get, so this is equal to 1080. So that means क्या, number of possible ways it can be done is 1080 ways, ठीक है, ये आपको समझना है. Try to understand it. Now आज का जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, 2 feared dice each with faces number 1 2 3 4 5 and 6 are rolled together and sum of the numbers on the faces is observed. This process is repeated till the sum is either a prime number or a perfect square. Suppose the sum turns out to be a perfect square before it turns out to be a prime number. If p is the probability that this perfect square is an odd number, then the value of 14p क्या होगा? P is the probability that this perfect square is an odd number. Odd number, perfect square is an odd number का मतलब है, so that is what you'll get, जैसा 9, ठीक है, 9 के लिए कितना पॉसिबिलिटीज़ है वो आपको देखना है. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ठीक है, क्लियर. जैसे 9 के लिए थोड़ा हिंट्स ले लो, 3 6 6 3 4 5 5 4, ठीक है, क्लियर. एंड सो ऐसा करके आपको देखना है जो जब परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्लियर, तो कितना वेज में यू कैन राइट सो लाइक दिस वे. नाउ यहीं पे जो लॉजिक क्या बोल रहा है, क्लियर. Suppose the sum turns out to be a perfect square before it turns out to be a prime number. P is the probability that this is a perfect square. So my dear friends, so that means क्या 4 and 9 का बारे में आपको सोचना चाहिए. 4 में क्या हो सकता है 1 3, and so this is 3 1, and so this is 2 2, 4 के लिए. and 9 के लिए क्या क्या हो सकता है, देखो this is 3 6, इसका उल्टा 6 3, और कितना है, so this is 4 5, and so this is 5 4, ठीक है, क्लियर. सो दैट मीन्स इज व्हाट, टोटल केसेस कितना हो रहा है देखो, क्लियर, टोटल केसेस, सो दैट इज व्हाट, सो दैट इज 7 है. लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, पी इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर, सो दिस इज एन ऑड नंबर, सो दैट मीन्स इज व्हाट, पी इज इक्वल टू इज व्हाट 4/7 है. लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, आपको 14p फाइंड करना है. सो दिस इज 14 इंटू 4/7, सो दैट इज इक्वल टू 8 है, बस नथिंग एल्स. ये आपको समझना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. Now, आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है, लेट द फंक्शन f फ्रॉम 0 to 1 to r बी डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू 4 to the power x by 4 to the power x plus 2 है. देन द वैल्यू ऑफ f of 1/40 प्लस f of 2/40 प्लस f of 3/40 अप टू f of 39/40 माइनस f of 1/2 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है. ठीक है, क्लियर. सो एक फैंटास्टिक क्वेश्चन है, क्लियर. ये क्वेश्चन काफ़ी पहले चाहिए, एडवांस एग्जाम में रिपीट हुआ था, आया था, लेकिन फिर देखो 2020 में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. सो माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर इट, ठीक है. PYQ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है. इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली जेईई एडवांस एग्जाम में पूछा जाता है. तो यहीं पे गिवन है f(x) इक्वल टू 4 to the power x by 4 to the power x plus 2, तो मैं इसका वैल्यू फाइंड करना है. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आप क्या करोगे, f of 1 - x का, ये दोनों का साम का वैल्यू फाइंड कर लो. तो क्या फाइंड किया, 4 to the power 1 - x बाई दिस, अभी ऊपर नीचे 4 to the power x से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज 4 बाई दिस. अभी इसको 2 से डिवाइड कर दिया, सो व्हाट विल गेट, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 4 to the power x. देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इसका वैल्यू क्या है 1 है. अभी ये जो एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एंड लास्ट को करो, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, लाइक दिस. ऐसा करके जब करोगे, बीच का जो टर्म है वो बच जाएगा. तो बीच का टर्म क्या है 20/40, और ये भी था, क्लियर. सो दिस इज, तो ये क्या है 1/2, ये भी 1/2. तो ऐसा करके देखो 1 से शुरू कहाँ तक गया, 19 है, तो इसका सम क्या होगा, सो दैट इज व्हाट, सो दैट इज इक्वल टू 19 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, देखो 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था. ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली जेईई एडवांस एग्जाम में पहले भी पूछा गया था. देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए PYQ आपके लिए ज़रूरी है. सारे PYQ को एक बार अच्छा से आप प्रैक्टिस करोगे.
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो लेट द फंक्शन शेप फ्रॉम क्लियर 0 to pi to r डिफाइंड बाई एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल टू द पावर 4 है सपोज द फंक्शन एफ हैज ए लोकल मिनिमम एट थीटा प्रिसाइजली व्हेन थीटा बिलोंग्स टू लैम्डा 1 पाई लैम्डा 2 पाई ऐसा करके लैम्डा r पाई ठीक है वेयर clear so this is lambda 1 lambda 2 and lambda r belongs to 0 to 1 so that means positive as well as less than 1 then the value of lambda 1 plus lambda 2 plus dot lambda r so आपको देखना है कहाँ पे मिनिमम है ये जो फंक्शंस है तो कहाँ पे मिनिमम है का क्या मतलब है ना इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर दो वहीं से थीटा का वैल्यू मिल जाएगा थीटा का वैल्यू नंबर लाइन में प्लॉट कर देना प्लस माइनस करके देखना जहाँ पे क्लियर मिनिमम टू जहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव है वहीं पे मिनिमम है ठीक है क्लियर अब पॉजिटिव टू नेगेटिव में मैक्सिमम है तो जहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा वो मिनिमम वैल्यू है वो पॉइंट को आपको फाइंड करना है नाउ फंक्शंस ए है ए इसका मिनिमम किस पॉइंट में मिनिमम होगा आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो सो दिस इज ट्वाइस ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड इसका डेरिवेटिव क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ठीक है और ये क्या होगा सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब है और ये क्या होगा सो दिस इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये सब आपको ध्यान में रखना है अभी आप क्या कॉमन लोगे देखो सो दिस इज देखो ये दोनों ही कॉमन जा रहा है सो दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इसको कॉमन ले लिया तो यहीं पे क्या बचेगा सो दैट इज 2 इसको कॉमन ले लिया यहीं से भी एक कॉमन लिया सो दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ठीक है एक बार ठीक से चेक करो सो दिस इज हमने क्या लिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना तो ये माइनस हो जाएगा सो दैट इज होल स्क्वायर ठीक है क्लियर सो इट विल गेट सो दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड सो दिस इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये क्या होगा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 ठीक है सो दिस इज -4 प्लस ठीक है सो दैट इज वर्ड प्लस 4 साइन 2 थीटा ठीक है साइन 2 थीटा सो लाइक दिस सो दिस इज इक्वल टू 0 है सो दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 सो दैट मीन्स इज व्हाट ये क्या क्या वैल्यू हो रहा है आपका सो दैट मीन्स इज व्हाट tan थीटा इज इक्वल टू -1 आपका जो इंटरवल है क्लियर सो इंटरवल है 0 से पाई है ठीक है तो tan थीटा इज -1 सो थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 से पाई सो दैट इज 3π/4 है ठीक है इस पे क्या है tan थीटा इज इक्वल टू 1 है सो थीटा का वैल्यू क्या है सो दिस इज π/4 है इस पे क्या है ना 4 साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 है साइन 2 थीटा इक्वल टू हाफ है ठीक है सो दैट इज 2 थीटा इज इक्वल टू एक तो वैल्यू π/6 एक 5π/6 सो थीटा का वैल्यू क्या है π/12 एंड सो दिस इज 5π/12 है ठीक है देखो यहीं पे एक वैल्यू सो लाइक दिस ये सारे वैल्यू आपको मिला है ठीक है अभी आप क्या करोगे नंबर लाइन में प्लॉट कर दो सो लाइक दिस सो दिस इज व्हाट ठीक है नंबर लाइन पे क्या हो रहा है देखो सो दिस इज सबसे छोटा π/12 सो दिस इज 0 एंड सो दिस इज π/4 सो दिस इज 5π/12 एंड सो दिस इज 3π/4 एंड सो दिस इज पाई ठीक है यहीं से शुरू करोगे सो दैट मीन्स इज व्हाट क्लियर सो दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है तो सो दैट मीन्स क्या है मिनिमम कहाँ हो रहा है जैसा मिनिमम कब होगा ना डाउनवर्ड टू अपवर्ड इस पे मिनिमम देगा सो दैट मीन्स ए पॉइंट मिनिमम वैल्यू देगा और ये पॉइंट मिनिमम वैल्यू देगा इसका वैल्यू लैम्डा 1 है इसका वैल्यू लैम्डा 2 है ठीक है तो आपको क्या मिला देखो सो दिस इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आपको फाइंड करना है सो दिस इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्लियर सो दिस इज π/12 एंड 5π/12 सो दैट इज व्हाट ठीक है 6π/12 सो दैट इज व्हाट सो दिस इज व्हाट व्हाट विल गेट सो दिस इज π/, ठीक है क्लियर सो दिस इज π/, आपको फाइंड क्या करना था इनटू पाई भी था ठीक है सो दैट मीन्स जो क्वेश्चंस में जो है देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस लैम्डा 1 पाई लैम्डा 2 पाई सो लाइक दिस सो दैट मीन्स क्या आपका जो आंसर होगा लैम्डा 1 पाई इनटू पाई सो दिस इज इनटू ठीक है क्लियर 1/पाई सो दैट इज व्हाट 1/पाई सो इट विल गेट सो दिस इज व्हाट 1/पाई सो दिस इज 1/2 है तो आपका जो आंसर है सो दैट इज व्हाट सो दिस इज 1/2 है ये मिनिमम वैल्यू है इसे आपको समझना है ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है बार बार पूछेगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए